جہانگیر ترین نے گروپ اراکین کو اہم پیش رفت کا عندیہ دے دیا ہے۔ ترین گروپ کے اجلاس میں اہم حکومتی شخصیات کی جانب سے رابطے کی کوشش بھی زیر بحث رہی۔ آئندہ ملاقاتیں جہانگیر ترین کی اجازت سے مشروط کر دی گئیں۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں جہانگیر ترین گروپ کا اہم اجلاس، رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اراکین نے جہانگیر ترین کو موجودہ سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں حمزہ شہباز اور پرویز الہی سے ملاقات کے بعد تمام معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ ترین گروپ کی اکثریت نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کی حمایت کی۔ اراکین اسمبلی نے کہا کہ مانس بزدار اعلان پر قائم ہیں، موجودہ سیاسی صورتحال میں حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے، تاہم حتمی فیصلے کا اختیار جہانگیر ترین کو دیا ہے۔ ترین گروپ نے اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کیا۔ اعلامیہ کے مطابق ترین گروپ نے سندھ ہاؤس پر دھاوا بولنے کی مذمت کی۔ اراکین نے کہا کہ حکومتی اما پر سندھ ہاؤس کا گھیراؤ اور توڑ پھوڑ پر تشویش ہے۔ اجلاس میں ترین گروپ سے چند اہم حکومتی شخصیات کے رابطے بھی زیر بحث رہے۔ آئندہ ان شخصیات سے ملاقات جہانگیر ترین کی اجازت سے مشروط کر دی گئی۔ اجلاس کے شرکاء سے جہانگیر ترین نے خطاب بھی کیا۔ جہانگیر ترین نے سیاسی صورتحال میں اہم پیش رفت کا عندیہ دیا۔ جہانگیر ترین نے گروپ کے اراکین کو متحد رہنے کا پیغام دیا۔ ترین گروپ نے مزید مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اجلاس کے اختتام پر شرکاء کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ تحریک انصاف نے منحرف ارکان کو شو کوز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 13 منحرف ارکان کے شو کوز نوٹسز پر دستخط کر دیے گئے ہیں، جبکہ نوٹس آج جاری ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے منحرف ارکان کے شوکاز نوٹسز پر پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی اجلاس میں منحرف ارکان کو شوکاز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شوکاز نوٹس میں منحرف ارکان سے وضاحت طلب کی گئی۔ منحرف ارکان کو 7 روز کے اندر معافی مانگ کر غیر مشروط پارٹی میں واپس آنے کی مہلت بھی دی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ 7 روز تک جواب نہ دینے اور واپس نہ آنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور شہباز شریف کا آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق بیان بوکھلاہٹ ہے، یہ کہنا ہے شہباز گل کا، جس کا فیصلہ سال کے آخر میں ہونا ہے۔ اس ایشو کو سیاست میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ شہباز صاحب، آپ نے کیا فیصلہ کرنا، اس وقت تک آپ جیل میں ہوں گے، یہ کہنا ہے شہباز گل کا۔ تو شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ مزید لکھتے ہیں کہ شہباز نواز ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ شہباز شریف کا آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق بیان بوکھلاہٹ ہے۔ وزیر اعظم کل مالاکنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے، ہم نے ملک واپس لٹیروں کے ہاتھ نہیں دینا ہے۔ وزیر اعظم کل مالاکنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے، فیصل جاوید کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہا، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ اجلاس میں سندھ ہاؤس میں ہونے والے واقعے، منحرف اراکین سے متعلق سپریم کورٹ میں ریفرنس پر مشاورت کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے اور تحریک عدم اعتماد سے متعلق امور پر بھی بات ہوگی، جبکہ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ بنی گالہ میں بلا لیا ہے۔ اجلاس میں پرویز خٹک، اسد عمر، فواد چودھری، بابر اعوان، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں سندھ ہاؤس میں ہونے والے واقعے پر مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ منحرف اراکین سے متعلق سپریم کورٹ میں ریفرنس پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے اور تحریک عدم اعتماد سے متعلق امور پر بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں، اپوزیشن کی سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، یہ کہنا ہے عثمان بزدار کا۔ مزید کہتے ہیں کہ ملک میں انارکی اور انتشار پیدا کرنے والے شرمندہ ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں اور متحد رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں، عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن کی سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، ملک میں انارکی اور انتشار پیدا کرنے والے شرمندہ ہوں گے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کراچی سینٹرل جیل میں سلاخوں کے پیچھے زندگی کے دن گزارتی خواتین جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں اکیلی نہیں، ان کے معصوم بچے بھی ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان معصوم بچوں کا بچپن کس طرح گزر رہا ہے اور آنے والی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے، دیکھیے ثنا فاطمہ کی یہ رپورٹ۔ یہ ہیں کراچی سینٹرل جیل کے مناظر، جہاں قیدی معصوم بچے پاکستان ڈے کی تقریب منا رہے ہیں۔ ان ننھے منھے فرشتوں کو یہ ادراک نہیں کہ ان کی زندگی جیل کی سلاخوں اور اونچی اونچی دیواروں کے درمیان محصور ہے، کیونکہ ان کی مائیں یہاں مختلف جرائم کی سزا کاٹ رہی ہیں۔
इस जेल में कैद खवातीन की तादाद 158 है। इनमें से बाज़ को सज़ा हो चुकी है जबकि बाज़ अंडर ट्रायल हैं। सज़ा नहीं, अभी केस चल रहा है हमारा। कितने बच्चे हैं आप? 2, एक की 3.5 साल है, एक 1 साल का है। मैडम पीछे हमारा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपने पास बच्चे रखे हैं। शोर भी अंदर है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, एक अभी 4वें महीने में चल रहा है, दूसरा 2 साल में। जमानत हो रही है। सितम शरीफी ये है कि इन खवातीन के फूल से मासूम बच्चे भी तितलियों और जुगनुओं के साथ अटखेलियां करने की उम्र में अपनी माओं के साथ जेल की काल कोठरियों में अपना बचपन खो रहे हैं। इन बच्चों की तादाद 29 है। कौन सी क्लास में? 3 क्लास में। अच्छा, कोई अच्छी सी पोएम आती है आपको? सुनाओ। ABCD EFG अलिफ ब ते से जीम हा। हमारे माशरे में खवातीन को सज़ा होने के बाद आम तौर पर ख़ानदान वाले उनसे कता ताल्लुकी कर लेते हैं, जिसके बाद बच्चों की किफ़ालत करने को अमूमन कोई तैयार नहीं होता। उनकी माएँ होती हैं बच्चों की, ऑलरेडी बड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन में होती हैं। ये बच्चे ऑलरेडी मतलब डिप्राइव्ड हैं बहुत सारी चीज़ों से, उनको मोहब्बत वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो सराउंडिंग्स का असर होता है वो ये होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल इनका थोड़ा कम हो जाता है। अब ज़ाहिर है इन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, जेल में अपनी वालदा के साथ आ गए हैं। बच्चों को काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, साथ साथ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग से ज़्यादा मोटिवेशन। 3 से 4 साल के बच्चे ज़्यादा हैं और 1 से 1.5 साल के बच्चे ज़्यादा हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि बच्चे जो है ना, चाहे जितना भी माहौल ये कि अच्छा है, एक प्रेजेंट का स्टिग्मा है, तो बच्चों अपनी ये कि बाहर जाएं, और वो कोशिश कर रहे हैं इनकी मदद से टाइम टू टाइमली ये कि मीटिंग करते हैं कि आप अपने बच्चों को अपनी फैमिली के हवाले कर दें। बच्चों के साथ पाकिस्तान डे मनाने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी भी सेंट्रल जेल पहुंची और इनके साथ फेस पेंटिंग, मैजिक शो और म्यूजिकल चेयर एंजॉय किया। शर्मिला फारूकी का कहना था कि हुकूमत सिंध इन बच्चों की बहबूद के लिए पूरी तरह संजीदा है। लेजिस्लेशन के ऊपर भी काम कर रही हूँ कि वो ख़वातीन जो किसी भी जुराइम के अंदर बच्चों के साथ जेल में आती हैं, उनके लिए एक अलग से कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जहाँ पर वो बाकी जो कैदी हैं उनके साथ ना रहें। बच्चों को वो माहौल दिया जाए जो एक घर में तकरीबन माहौल होता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अप्रूव भी हो जाएगा और असेंबली से पास भी करेगी। अपनी औलाद से मुताल्लिक हर माँ के ख्वाब एक से होते हैं, जो इन कैदी माओं की आंखों में भी हैं। हुकूमत और माशरे के जिम्मेदार शहरियों को आगे बढ़कर इन मासूम फरिश्तों को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतने से बचाना है, क्योंकि ये भी माशरे का मुस्तकबिल और कौम के मेमार हैं। घर खरीद सकते हैं। एक रियल स्टोरी, अगर आप 22 लाख का कर्ज़ा लेते हैं इस स्कीम के तहत, तो आपकी मावाना किस्त तकरीबन 14,000 बन जाती है, और 14,000 ही तकरीबन वही हाउस रेंट है। लेकिन इसमें एक और फ़ायदा ये है कि आपका घर का किराया हर साल बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप मेरा पाकिस्तान मेरे घर की स्कीम में कर्ज़ा ले लेते हैं तो उसकी मावाना किस्त फिक्स होती है और हर साल नहीं बढ़ता। अब मैं शुरू इस कहानी से करना चाहता था, एक ख़ातून की, एक बेवा ख़ातून की, जो अपनी एक बच्ची के साथ रहती हैं, इसलिए कि उनका ख्वाब पूरा हो। और मैं आप ये कहना थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी शुरू कहाँ से। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक विज़न थी कि मुल्क में तरक्की के लिए हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और इसके साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग को हमने मुल्क में एक नए जोश के साथ प्रमोट करना है। अगर आप देखें तो इस काम को शुरू करने से पहले जो पूरा हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस और मॉर्गेजेस वगैरह हैं, ये हमारे जीडीपी की 1% से भी कम के लेवल पे था। और क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को बड़ा क्लियरली ये पता था कि अगर हम दूसरे ममालिक से अपना मुकाबला करें तो एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि हमारा हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वो नहीं है जहां होना चाहिए। एक, अगर हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो रोज़गार मिलेगा लोगों को, ख़ासकर वो लोग जो दिन की दिहाड़ी करते हैं। और दूसरा ये कि अगर साथ एक गवर्नमेंट ये स्कीम लाएगी कि हाउस लोन का सब्सिडी दे मार्कअप पे, कि ये मुमकिन हो कि घर की किस्त अफोर्डेबल हो, तो फिर लोगों का अपने घर का ख्वाब पूरा होगा। जब
वज़ीर आज़म साहब ने ये स्कीम शुरू की तो उन्होंने हुकूमत के अदारों को ये डायरेक्शन दी कि सब इसमें अपना अपना किरदार अदा करें। और मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि इस स्कीम को आगे बढ़ाने में हर हुकूमती अदारे का किरदार है। फ़ाइनेंस डिवीज़न ने इसके पैसे दिए हैं, अगर फ़ाइनेंस डिवीज़न इसके पैसे ना देती तो ये लोगों के लिए मुमकिन ही ना होता कि वो इस किस्त पे अपना घर ख़रीद सकें। नैपडा जो कि पाकिस्तान में इस सारे कंस्ट्रक्शन हाउसिंग काम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनको डायरेक्शन दी कि आप और ऐसे लो कॉस्ट हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बनाएं। और स्टेट बैंक को ये डायरेक्शन दी कि आप बैंकों के साथ मिल के एक ऐसा इंतज़ाम, एक ऐसा निज़ाम बनाएं कि मुल्क में बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं इस तबके को सपोर्ट करें जिसकी सलाहियत 5 या 10 मरला के मकान की है। हमारे मुल्क में बैंकों के अगर आप किसी दुकान में भी चले। आगे बढ़ते हैं। चौधरी मोइन इस्लाही कहते हैं कि फवाद चौधरी बताएं किसने किसकी मदद की। सीट एडजस्टमेंट के बावजूद पीटीआई एमपीए ने हमारे एमएनए से कम वोट लिए, बराह करम इलेक्शन कमीशन से नताइज चेक करें। उन्होंने मजीद कहा कि फवाद चौधरी ने इत्तेहादियों के सीट एडजस्टमेंट से जीतने का बयान दिया था। फवाद चौधरी बताएं किसने किसकी मदद की, कहना है मोइन इस्लाही का। और सीट एडजस्टमेंट के बावजूद पीटीआई एमपीए ने हमारे एमएनए से कम वोट लिए, बराह करम इलेक्शन कमीशन से नताइज चेक करें, ये कहा गया मोइन इस्लाही की जानिब से। और फवाद चौधरी ने इत्तेहादियों के सीट एडजस्टमेंट से जीतने का बयान दिया था। तो सीट एडजस्टमेंट के बावजूद पीटीआई एमपीए ने हमारे एमएनए से कम वोट लिए, ये कहा गया मोइन इस्लाही की जानिब से। परवेज़ खटक का तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी से राबता, तरीन ग्रुप अरकान की नाराज़गी के मामलात पर बातचीत हुई। परवेज़ खटक की तरीन ग्रुप से फौरी इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त, फैसले रोक लें, जल्द पेशरफ से आगाह करेंगे। परवेज़ खटक ने ओन चौधरी से ये गुफ्तगू की है। परवेज़ खटक का तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी से राबता हुआ। तरीन ग्रुप अरकान की नाराज़गी के मामलात पर बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है, मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अंसारी। जी लियाकत। जी बिल्कुल, रूटो को मनाने के मिशन के तहत ये सियासी राब्ता हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक ने रात गए तीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी से राब्ता किया है। टेलीफोनिक राब्ते में ग्रुप अरकान की नाराजगी के मामलात पर बातचीत की गई है। ओन चौधरी ने इस टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक की है और बताया कि ये रात के राब्ता हुआ है। अब परवेज़ खटक ने तीन ग्रुप को फौरी तौर पर कोई भी इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त की और कहा कि आप अपने फैसले जो है वो रोक ले, चंद अहम जल्द जो है वो अहम पेशरफ्त होगी जिससे आपको आगाह किया जाएगा। ओन चौधरी से वफाकी वजीर फवाद चौधरी का भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तो यूं जो तीन ग्रुप है कदम उठाने से रोका जा रहा है और वफाक के जो तरफ से वज़रा की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसके तहत ये चाह रहे हैं कि तीन ग्रुप जो है वो पंजाब में कोई ऐसा कदम ना उठाए जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाए और उसका तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचे। तो बुनियादी तौर पर ये तीन ग्रुप जो कि अपना एक इंतहाई कदम उठाने जा रहा है और माइनस उस्मान बुज़दार इकदाम का ऐलान कर चुका है, उस हवाले से ये राब्ते किए जा रहे हैं कि उनको इस हवाले से रोका जाए कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ किसी इंतहाई कदम का ऐलान ना करें। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका।